So notification for RBI Grade B DEPR is out now, and according to the new notification, there is a change in the scheme of exam. So I'm just recording this video to update you all about the new scheme of exam. Now, as per the new revised scheme of exam for phase 1 as well as for phase 2, the new scheme of exam will have basically 4 papers now, 2 in phase 1 and 2 in phase 2. In short, I can say that the descriptive paper weightage has been enhanced in phase 2. The rest is almost, we can say, same as it was practiced earlier also. So phase 1 exam, that just you can copy this revised scheme of exam. So for the 2023 exam, the phase 1 will be having 2 paper now. One paper will be the objective on economics. So first paper will be objective on economics, this paper. Earlier also the phase 1 exam was having one paper on the objective, or in the pattern was basically one paper was on economics and the pattern was objective. So you can say the same paper is basically continuing here, but phase 1 will also now include the descriptive paper on English. Earlier it used to be in phase 2, now it is included in phase 1. So this will be your first stage. Now in this first stage, now you have to qualify in paper 1 as well as in paper 2. So जो भी reference हमारे पास last year के थे कि last year it was 41% in the descriptive, now those calculation will change because now paper 1 and paper 2 both will be counted. Now once you qualify for phase 2, then in phase 2 now there are 2 paper of descriptive nature, both on economics but 2 descriptive, and the weightage for each paper in fact is 100 marks. So phase 1 paper 100, paper 200, phase 2 paper 100, paper 200. So including phase 1 and phase 2, now 200 marks for phase 1 and 200 marks for phase 2, that means 400 marks. तो phase 1 और phase 2 combine करके 400 marks हो जाएगा, and the weightage of interview remains same. तो relatively कह सकते हैं कि weightage interview का और decrease हो गया. Earlier 300 में 75 कर रहे थे weightage interview के लिए, अब 400 plus 75 है, that means the weightage of interview we can say absolute number में 75 रह गया, but relative term में weightage further decrease हो गया. तो interview weightage will be 75, so your final selection will be out of 475. Earlier it used to be 375. So paper phase 2 descriptive paper वो उसका weightage increase किया गया है. इंग्लिश हम सिर्फ कह सकते हैं कि phase 2 से phase 1 में ट्रांसफर हो गया. phase 1 के अंदर जो पहला पेपर है वो as it is रह गया, descriptive nature का. And the other important thing is now the syllabus of phase 1 and phase 2 is also clearly well defined. Earlier it was very ill defined, but now it is well defined. Well defined in the sense that in phase 2 paper 1 and paper 2 which are the important topics, कौन से topic है वो clearly mentioned है, plus the sources are also mentioned, that what they are expecting and which book you should be referring to. So I will be just going into the detail of that, but just to brief up again, phase 1 paper 1 will be objective pattern economics, but that will include question of econometrics also. phase 2 will be paper 2 will be descriptive, but वो कीबोर्ड से आपको लिखना याद रखेंगे. phase 2 के पेपर ये कंप्यूटर पे शो करेंगे, बट आपको लिखने पेपर पे. तो पेपर 1 will be descriptive as well as paper 2 will be descriptive. This phase 2 paper 1 is basically micro and macro, and paper 2 is one section will be the econometrics and the other section will be all about the Indian economy. So I will just explain the syllabus in detail. So I think the scheme is clear. As compared to the previous pattern, the new pattern is basically having one extra paper for on economics. Descriptive का weightage increase हो गया, और phase 1 में select करने के लिए आपको paper 1 और paper 2, that means objective economics एंड इंग्लिश, वो दोनों ही अब आपको क्वालिफाई करने हैं. दोनों को कंबाइन मिला करके कट ऑफ डिसाइड होगा. नाउ कम टू द सिलेबस पार्ट ऑफ इट, द स्कीम ऑफ एग्जाम फॉर दिस DEPR. ठीक है, तो हमारी जो स्ट्रैटेजी इनफैक्ट फेज 1 के लिए पहले से चल रही थी, या जो क्रैश कोर्स जैसे बिगिन हुआ उसके बाद फेज 1 के अंदर आपको कोई चेंज नहीं करना.
मतलब इकोनॉमिक्स का जो फेज 1 का प्रिपरेशन था ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा बिकॉज इट इज गोइंग टू बी द सेम। बट हाँ, फेज 1 के अंदर इंग्लिश की क्लास को हमें थोड़ा प्रीपोन करना है, मतलब वी हैव टू कंडक्ट दोस क्लासेस बिफोर बिकॉज नाउ इट इज इन द फेज 1। सो you can see that notification for 2023 scheme is clear, I hope. Phase 1 objective on economics 2 आवर का पेपर है, 100 मार्क्स। अब ये देखना है कि जो फॉर्मेट पहले से कंटिन्यू रहता है वो फॉर्मेट वो मेंटेन करते हैं या फॉर्मेट में भी कोई चेंज आता है, मतलब इन द सेंस लास्ट ईयर और अर्लियर इट यूज्ड टू बी 62 क्वेश्चन और डिफरेंट वेटेज, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, whether they continue with the same pattern or there could be a change in pattern also. So be ready for that change in pattern also. But just following the last year pattern we can continue our preparation. But be ready mentally for any different set. So read the instruction carefully in the examination hall. And second paper is English to be typed with the help of keyboard. तो ये 200 marks phase 1 हो गया। phase 2 descriptive 100 marks एंड द सेकेंड पेपर इज 100 मार्क्स। तो 400 मार्क्स का आपका ओवरऑल हो जाएगा और इंटरव्यू का वेटेज 75 वो मेंशन है डिटेल में। नाउ कम टू द सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ दिस नोटिफिकेशन एंड द सब्सटेंशियल पार्ट इज ऑल अबाउट द सिलेबस। सो फेज 1 पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑन इकोनॉमिक्स, यू कैन हाईलाइट दिस सिलेबस पार्ट। तो अर्लियर ये सारे इतने ज़्यादा वेल एक्सप्लेन्ड नहीं होता था सिलेबस। नाउ पेपर 1 जो ऑब्जेक्टिव टाइप इकोनॉमिक्स है, दिस इंक्लूड माइक्रो थियरीज ऑफ कंज्यूमर डिमांड, प्रोडक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एज वेलफेयर इकोनॉमिक्स। सो द टॉपिक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। वेलफेयर विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन जनरल इकोनॉमी also. Production topics are very important. Theory of consumer demand, there may be more question from theory of consumer demand also now. So micro will basically include, but वहाँ पे भी आपको थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा। जो पैटर्न है बेसिकली उसके अकॉर्डिंगली मार्केट स्ट्रक्चर का वेटेज ज़्यादा होता है। सो यू हैव टू फोकस मोर ऑन द मार्केट स्ट्रक्चर टॉपिक, बट इट इज रिटन जस्ट ओनली मार्केट स्ट्रक्चर। यू हैव टू रीड परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, विद इन ओलिगोपोली, कॉलिसिव ओलिगोपोली, नॉन कॉलिसिव ओलिगोपोली। तो जनरली you will find more and more question from the oligopoly section, Cornett model, Burton model, Stekelberg model. So you have to practice more of those questions. So for one important unit is micro, then the second is macroeconomics, which deals with theory of employment, output and inflation. It is mainly, you can say, the ISLM model and school of different school of economic thought, like classical, Keynesian, neoclassical, neo-Keynesian. बट मेन कंटेंट इन दिस सेक्शन, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न का होने वाला है, सो द क्वेश्चन ऑन ISLM एंड बेस्ड अपॉन ISLM न्यूमेरिकल विल बी देयर, सो मेजर पार्ट विल बी दैट। थर्ड इज इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट मॉडल। जनरली व्हाट हैपेंस दैट ये टॉपिक आपको फेज 2 के अंदर भी लिखा हुआ है इंटरनेशनल का। तो थ्योरीज के सम क्वेश्चन यू विल फाइंड इन फेज 1, बट क्वेश्चंस ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट लाइक मंडल-फ्लेमिंग मॉडल, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, वो क्वेश्चन फेज 1 के अंदर जनरली वो नहीं होंगे, वो फेज 2 के अंदर डिस्क्रिप्टिव पार्ट, बिकॉज उसका नेचर डिस्क्रिप्टिव है। ऑल्दो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड, बट दोज टॉपिक्स आर मोर सुटेबल फॉर फेज 2। तो हम कंटेंट तो यहाँ लिखेंगे, बट हमें प्रायोरिटी क्लियर रखनी है। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन द थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड in phase 1, and in for phase 2 it will be balance of payment and the foreign exchange rate. Fourth topic is theories of economic growth and development. Again, this topic is more important for phase 2, but in phase 1 they are asking very important numerical problems from solo model. तो सोलो मॉडल को आपको डिटेल में विथ न्यूमेरिकल, सोलो मॉडल हो या एरोडोमर मॉडल हो, जहाँ जहाँ न्यूमेरिकल ओरिएंटेशन से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं जिस मॉडल में, लाइक फॉर एग्जांपल लुइस मॉडल का क्वेश्चन है, तो अब लुइस मॉडल से कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो रहा, या हैरिस-टोडर मॉडल है, या बैलेंस और अनबैलेंस ग्रोथ स्टडी है, तो अगर वो न्यूमेरिकल फॉर्म में क्रिएट नहीं हो रहा, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में क्रिएट नहीं हो रहा, तो दोज टॉपिक विल बी आस्क्ड इन फेज 2 नॉट इन फेज 1। तो आपको वो थोड़ा स्मार्टली प्रिपेयर करना है कि कौन सा टॉपिक फेज 1 का आएगा, कौन सा टॉपिक फेज 2 का आएगा, बिकॉज सेम थिंग विल बी रिटन इन फेज 2 सिलेबस ऑल्सो। देन फिफ्थ इज पब्लिक फाइनेंस,
theories of taxation and public expenditure and public debt management, like you can say Weizmann-Peacock hypothesis, Wagner's law. Related to that, some objective question can be created कि Wagner's law was based upon the empirical evidence of which country, या Weizmann-Peacock hypothesis was based upon the empirical evidence of which country. तो those type of question can be created, और inspection effect, displacement effect, ये जो keywords basically मैं use कर रहा हूँ वो किस hypothesis से related है. Then the environmental economics से mentioned है. Green GDP, meaning of it, environmental valuation like Kuznets inverted U hypothesis, environmental policy and instruments, command and control technique हो सकता है या economic incentive हो सकते हैं, दोनों का relative strength और weaknesses. तो environmental economics हम कह सकते हैं ये न्यू कंटेंट के फॉर्म में स्पेसिफिकली एडेड एक्सप्लिसिटली सिलेबस के अंदर. सो यू शुड बी रेडी टू आंसर फ्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन based upon the environmental economics as well. Seventh topic is mainly for the quantitative methods in economics, and this will include your mathematical and statistical method for econometrics and some part of the econometrics. तो maths, stats और econometrics का section ये 7th topic के अंदर है. and the last one is for the current development in the Indian economy. So generally वो पहले से भी होते थे, 3-4 क्वेश्चन आपको इंडियन इकोनॉमी के मिलते हैं फेज 1 के अंदर. बट यहाँ पे अब टॉपिक मेंशन्ड है दैट इट विल बी रिलेटेड टू द ग्रोथ, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर, फिजिकल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज. बट द वेटेज फॉर दिस सेक्शन इन फेज 1 विल बी लिमिटेड टू मैक्सिमम 4 to 5 शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. तो 4 से 5 नंबर का वेटेज, उससे ज़्यादा नहीं. बट यहाँ पे क्वेश्चन फैक्चुअल थोड़े हो सकते हैं, लाइक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फिजिकल डेफिसिट फॉर द ईयर 2022-23, or value of you can say primary deficit, or value of the revenue deficit, या growth rate target, या foreign exchange का reserve क्या है. These type of question may be asked in this category in phase 1, objective in nature. So your preparation, that means वो आप economic survey अगर आप synopsis economic survey का या budget का कर लेते हैं तो you can answer majority of question that will be going to ask from the Indian economy section. तो ये 8 पार्ट्स बेसिकली हो जाएंगे फॉर पेपर 1 जो ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए. ठीक है, ये आपका फेज 1 होगा. बट द सिंस इट इज रिटन दैट इट इज ऑब्जेक्टिव एंड वी नो दैट दे आर आस्किंग मेनी न्यूमेरिकल क्वेश्चन इन फेज 1, सो योर वे ऑफ प्रिपरेशन फॉर फेज 1 एंड फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर विल रिमेन सेम. जैसे पहले कर रहे थे वैसे करेंगे, बट यू हैव टू ऐड फ्यू मोर थिंग्स इन दिस प्रिपरेशन विच इज बेसिकली द एनवायरमेंटल इकोनॉमिक सेक्शन एंड पब्लिक फाइनेंस सेक्शन. ठीक है, तो कुछ नए टॉपिक जो यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, जो ऑलरेडी हम कर रहे थे वैसे करेंगे, बट जो सिलेबस के अंदर आप जो स्पेसिफिकली मेंशन्ड हो गया, यू हैव टू इनकॉर्पोरेट दोज लेक्चर्स इन योर प्रिपरेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट द फेज 1 पेपर 1. पेपर 2 का डिटेल कोई सिलेबस इंग्लिश के लिए अवेलेबल होता है. दिस पेपर ऑन इंग्लिश शैल बी फ्रेम्ड इन अ मैनर टू असेस द राइटिंग स्किल इंक्लूडिंग एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक. तो पहले से जो पास्ट के क्वेश्चन अवेलेबल है इंग्लिश वाले, वो साइट पे हमारे अवेलेबल होगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं. उसके अंदर पैटर्न में कोई डिफरेंस नहीं हो रहा, सेम उसी ऑर्डर में आपको की बोर्ड पे वो आंसर करना है. बट नाउ इट इज़ काउंटेड इन योर सेलेक्शन फॉर फेज 2. मतलब अब वो फेज 1 में ऐड हो गया, तो आपको थोड़ा ज़्यादा अलर्ट रहना, बिकॉज इट मे हैपन नाउ दैट इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग वेल फॉर द इंग्लिश दिस पेपर, you may score more in this first paper but may not qualify or do not meet the cutoff that will be set for the English paper. ठीक है, तो फिर आप फेज 1 से फेज 2 में ही नहीं जा रहे. तो फेज 1 टू फेज 2 में मूव करने के लिए अब इंग्लिश इंपॉर्टेंट हो गया. क्लियर? तो वो एक इम्पॉर्टेंट चेंज है. नाउ यू हैव टू, व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम फेज 1 टू फेज 2, इंग्लिश may become a hurdle now. ठीक है, तो वहाँ पे आपको केयरफुल रखना है कि वो आपके लिए मेजर हर्डल ना हो. स्कोर भी ज़्यादा करना है, बिकॉज अल्टीमेटली अप टू ऑल मार्क्स आर काउंटेड हियर. सो वंस यू मूव फ्रॉम फेज 1 टू फेज 2, फेज 2 के अंदर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर हो गए. डिस्क्रिप्टिव का वेटेज इंक्रीज हो गया, 1 एक्स्ट्रा पेपर डिस्क्रिप्टिव के इनफैक्ट ऐड हो गए. बट इट इज़ गुड फॉर मेनी स्टूडेंट्स, आई कैन से those who are preparing for economic service or those who are preparing for the civil service, उनके लिए डिस्क्रिप्टिव वाला वेटेज अगर बढ़ता है तो उनके लिए हम कह सकते हैं कॉम्पैरेटिव एडवांटेज है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग दोज डिस्क्रिप्टिव पेपर.
जो एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर कर रहे थे ओनली फॉर आरबीआई डीपीआर, उनके लिए वो एक्स्ट्रा हो जाएगा इन द सेंस बिकॉज उसका वेटेज बढ़ गया, देन यू हैव टू रीड मोर, मतलब ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का जो कंटेंट है वो आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो जो जो ऑलरेडी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे उनके लिए एडवांटेज, या सिविल सर्विस जो जिनका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है उनके लिए भी एडवांटेज है, मतलब उनको फेज 2 के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। फेज 1 के लिए है बिकॉज वहाँ नहीं चल रहा है, बट फेज 2 के लिए एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। सो इवन इफ जैसे करंट ईयर में जो इकोनॉमिक सर्विस का पेपर है वो जून लास्ट वीक में शेड्यूल्ड है, उसके बाद भी आपके पास फेज 1 के लिए 20 डेज का एक्सक्लूसिव टाइम है और फेज 2 के लिए 45 डेज का टाइम। ऑलरेडी आपने इकोनॉमिक सर्विस का पेपर दिया होगा, उसके बाद आपके पास इनफ टाइम होगा फेज 1 और फेज 2 का कवर करने के लिए। या जिनका सिविल सर्विस इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है, उन्होंने ऑप्शनल का अगर प्रिपरेशन कर रखा है तो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट उनके लिए प्रिपेयर्ड है, तो फेज 2 उनके लिए प्रिपेयर्ड है। फेज 1 में ओनली ऑब्जेक्टिव पैटर्न में उसको थोड़ा सा मोल्ड करना होगा, दैट मीन्स दे विल हैव टू डिजाइन देयर प्रिपरेशन और मोल्ड देयर प्रिपरेशन स्पेसिफिकली फॉर फेज 1। फेज 1 के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत है, नॉट फॉर फेज 2, और फेज 2 का वेटेज बढ़ने से आपके लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज हो जाता है। नाउ द टॉपिक इन पेपर 1 इंक्लूड माइक्रो, तो माइक्रो का एक मॉड्यूल है और मैक्रो का एक मॉड्यूल है। माइक्रो इंक्लूड अगेन इट दे आर स्पेसिफाइंग कंज्यूमर थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी, मार्केट स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो जो फेज 1 में लिखा हुआ है, अगर आप दोबारा से यहाँ पे देखो तो यहाँ भी माइक्रो, मैक्रो, इंटरनेशनल थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, तो माइक्रो और मैक्रो का जो मॉड्यूल है वो फेज 2 के अंदर दोबारा सेम ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में लिखे गए, बट ये डिस्क्रिप्टिव है। सो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन द डिस्क्रिप्टिव पेपर फ्रॉम द कंज्यूमर थ्योरी? डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कंज्यूमर थ्योरी के लिए। अब इट इज नॉट नेसेसरी कि वो न्यूमेरिकल हो, कंज्यूमर थ्योरी से अगर डिस्क्रिप्टिव है, लेट अस फॉर एग्जांपल इफ आई से एक्सप्लेन द बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व ऑफ लेबर बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में देना है, एक्सप्लेन करना है। All given goods are inferior, but all inferior goods are not given. Explain that statement by using indifference curve. So these type of question can be framed from that utility section because they are specifying income and substitution effect, and they are also asking game theory. So the question could be right on prisoner's dilemma, the importance of Nash equilibrium in oligopoly. Use different models in oligopoly to explain Nash equilibrium. So those type of question can be framed for a descriptive paper from consumer theory. Then production and cost, there are different laws of production, difference between general equilibrium and the partial equilibrium, law of variable proportion, law of returns to scale, market structure, pricing under different market structure. It is only written that pricing under different market structure. So you have to study market structure from all angles: perfect competition, monopoly, oligopoly, monopolistic. Now it is a descriptive paper, so the question could be on the from the Chamberlain model in monopolistic competition, Chamberlain concept of excess capacity in the monopolistic competition, coalescive oligopoly, dominant from price leadership model, barometric from price leadership model, low cost from price leadership model. Question could be on the cartel, वो descriptive paper हो जाएगा। तो वहाँ पे monopolistic और oligopoly के description वाले क्वेश्चन है। और सेक्शन 1 के अंदर जब ये मार्केट स्ट्रक्चर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। कॉर्नेट मॉडल का न्यूमेरिकल हो गया, शटडाउन प्राइस कैलकुलेट करना हो गया, ब्रेक इवन प्राइस आपको कैलकुलेट करना है, तो ये डिफरेंस इन अप्रोच ये होगा। देन द डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरीज रिकार्डो, कैल्डोर, कैलस्की एंड मार्क्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरीज में यूजुअली रिकार्डियन का, कैल्डोर के क्वेश्चन काफ़ी फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है, जिन जो भी एग्जामिनेशन इकोनॉमिक सर्विस का या सिविल सर्विस का दे रहे हैं उनके लगे डिस्ट्रीब्यूशन में एक कैल्डोर और कैलस्की क्वेश्चन रेगुलरली पूछेंगे। तो एक डिफाइंड आंसर है यहाँ पे। रिमेंबर, टू स्कोर मोर इन दिस एग्जामिनेशन यू हैव टू राइट वेरी एग्जैक्ट। इट इज नॉट दैट कि हमने रिकार्डियन मॉडल या कैल्डोर मॉडल पढ़ लिया, उसको अपने वर्ड्स में लिख दिया, वहाँ से उससे नंबर नहीं आएगा, मतलब उतने नहीं आएंगे जिससे सिलेक्शन होगा। तो स्कोर मोर यू हैव टू बी वेरी इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट, मतलब आपको बुक के में जो लिखा हुआ एज इट इज़ उसको रिप्रोड्यूस करना। फॉर दैट पर्पस पहले आपको उसको अपने नोटबुक में लिखना है, उसको डेली आंसर में इनकॉर्पोरेट करना है, टेस्ट सीरीज में लिखना है, फिर जाकर के वो फाइनल आंसर में आप लिख पाओगे।
And fourth is welfare economics, Pareto optimality, school of welfare thought including Arrow, Coase and Sane. तो Arrow's impossibility theorem, एक सेन का welfare function, and there are different optimality condition as well, like social welfare function के अलग अलग फॉर्म है, बेंथन welfare function या रावलसन welfare function. तो सैमुअलसन बर्गसन वेलफेयर फंक्शन को के अलग अलग डिफरेंट फॉर्म हो जाएंगे. तो इन दी वेलफेयर इकोनॉमिक सेक्शन द क्वेश्चन विल बी बेसिकली ऑन दैट, प्लस ऑल्दो इट इज नॉट मेंशन्ड बट पैरेटो ऑप्टिमैलिटी हैज सर्टेन लिमिटेशन. दो लिमिटेशन हैज बीन ओवरकम बाय कैल्डोर एंड हिक्स, एंड द लिमिटेशन ऑफ कैल्डोर एंड हिक्स हैज बीन ओवरकम बाय सेटोस्की. तो वो रेगुलर क्वेश्चन पैरेटो ऑप्टिमैलिटी, कैल्डोर-हिक्स कॉम्पेंसेशन प्रिंसिपल, सेटोस्की पैराडॉक्स, those type of question you have to prepare for in this section. So will help you there कि how to write and how effective you can write. ठीक है, उनका एक well defined answer है उन सबका क्वेश्चन का. तो list of question अब आपके लिए, in fact when you are preparing for even RBI you can refer to the question of Indian Economic Service as well as for the Civil Service Economics option. और वो पूरा क्वेश्चन नहीं देखना आपको, will be providing you the topic wise question so that आप distract नहीं हो रहे. आपसे वेलफेयर इकोनॉमिक्स पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो ओनली वेलफेयर इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन आ रखे हैं इकोनॉमिक सर्विस में या सिविल सर्विस में, we will just separate them and we will be providing to you for practice purpose. Then the second section in this first paper itself is a macroeconomic model including national income accounting and the various methods for the measurement of national income. Theory of employment is basically classical and Keynesian. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्राउडिंग आउट का, लिक्विडिटी ट्रैप का, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म का, ये सारे क्वेश्चन अब इस सेक्शन के अंदर थियोरेटिकल फॉर्म में पूछे जाएंगे. या बिजनेस साइकिल है तो बिजनेस साइकिल, व्हाई बिजनेस साइकिल ऑपरेट, व्हाट आर द वेरियस एक्सप्लेनेशन फॉर बिजनेस साइकिल प्रोवाइडेड बाय क्लासिकल और प्रोवाइडेड बाय द Keynesian. So those type of question you can expect in this descriptive type of paper in phase 2. Then inflation targeting, Phillips curve, Taylor's rule, Lucas critic. अब ये specified हो गया कि ये Taylor's rule, तो Taylor's rule exact है क्या, equation, उसका explanation और उसका policy implication. Phillips curve, Okun's law, Phillips curve में भी short run, long run, इन्फ्लेशन इज अ मॉनेटरी फेनोमेनन, ये स्टेटमेंट दे दिया, उसको आपको एक्सप्लेन करना है, दैट इज मॉनेटरीज व्यू ऑफ इन्फ्लेशन. तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन फेस फ्रॉम द इन्फ्लेशन सेक्शन. अदर पार्ट इज मनी एंड बैंकिंग विच इंक्लूड क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी. सो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एज यू नो, क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी या मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है. क्लासिकल के दो डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे, फिशर इक्वेशन हो जाएगा और कैश बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा, कैम्ब्रिज इक्वेशन है. तो वो कंप्लीट मालूम होना चाहिए कि क्लासिकल अप्रोच क्या कहता है, फ्रीडमैन क्या एक्सप्लेन कर रहा है, हाउ फ्रीडमैन इज रिलेटेड टू द क्लासिकल, हाउ फ्रीडमैन इज रिलेटेड टू द Keynesian, एंड हाउ फ्रीडमैन इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ ऑल्सो. देन थियरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. अब इकोनॉमिक ग्रोथ ये टॉपिक वहाँ भी गिवन है, फर्स्ट फेज के अंदर भी है और यहाँ भी है, बट यहाँ पे क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव है. तो यहाँ पे बैलेंस अनबैलेंस को स्टडी, लुइस मॉडल, हैरिस-पोडारो मॉडल, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, ऐसे क्वेश्चन पास्ट में आए हुए हैं. अगर आप क्वेश्चन को ओल्ड क्वेश्चन आप रेफर करो, तो आई विल जस्ट शो वन क्वेश्चन लाइक ये पास्ट ईयर ओल्ड क्वेश्चन में अवेलेबल है जब ओल्ड फॉर्मेट थे. एक्सप्लेन क्रिटिकली द मिनिमम एफर्ट थीसिस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ गिवन बाय लेविंस्टीन. तो लेविंस्टीन का जो क्रिटिकल मिनिमम हाइपोथेसिस है वो एक्सप्लेन करने को आ रहा है. रिमेंबर यहाँ पे क्वेश्चन की डिफिकल्टी नहीं होने वाली है, ये नहीं कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं होना. क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, बट योर आंसर टू दैट क्वेश्चन, हाउ वेल यू आर राइटिंग दैट क्वेश्चन एंड हाउ इलेबोरेट यू आर प्रेजेंटिंग दैट, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव है, योर डिस्क्रिप्शन एनालिटिकल स्किल विल बी इवैल्यूएटेड. ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट मीन्स अराउंड 14-15 मॉडल का एक मॉडल ओवरऑल ग्रोथ मॉडल के अंदर इंक्लूडेड है. हैरोड-डमर मॉडल, रोमर मॉडल, एके मॉडल, ऐसे काउंट अगर आप करोगे तो 15 के अराउंड मॉडल है. अगर आप सारे मॉडल प्रिपेयर कर लो तो 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट वहाँ से आपको मिल जाएगा, 2 या 3 क्वेश्चन.
देन इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जैसे मैंने पहले कहा स्टार्ट में भी ये फर्स्ट फेज के अंदर भी गिवन है इंटरनेशनल ट्रेड वाला पार्ट, और ये सेकंड फेज के अंदर भी है, बट यहाँ से बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले सेक्शन ज़्यादा पूछे जाएंगे. पब्लिक फाइनेंस, बट नाउ इन दिस पब्लिक फाइनेंस सेक्शन अगेन कैनन्स ऑफ टैक्सेशन हो गया, या पब्लिक डेट मैनेजमेंट है, या पब्लिक फाइनेंस का रोल है. इक्वल वेटेज विल बी गिवन टू माइक्रो एंड मैक्रो सेक्शन, ये गिवन है. दैट मीन्स इट इज नॉट रिटन दैट वेदर दे विल क्रिएट सम सेक्शन और नॉट. ठीक है, सेक्शन बनेगा ये नहीं लिखा हुआ. ऑप्शन कितने होंगे क्वेश्चन के अंदर वो भी इंफॉर्मेशन नहीं है. मतलब ओल्ड स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते थे, 10 क्वेश्चन थे, 5 करने होते थे, बाद में वो सेक्शन में डिवाइड हो गए थे. 5 क्वेश्चन दोनों सेक्शन में दिए गए, और 2 क्वेश्चन कम से कम दोनों सेक्शन से करने थे आपको. 5th क्वेश्चन के लिए आप फ्री थे. अब यहाँ पे एक क्लियर नहीं कि माइक्रो का वो अलग सेक्शन बना देंगे, मैक्रो अलग बना देंगे, या फिर कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन रखेंगे कि क्वेश्चन का ए पार्ट और बी पार्ट है, ए माइक्रो का हो गया, बी मैक्रो का हो गया. ठीक है, सो दैट इज नॉट क्लियर, बट इट कुड बी, यू कैन जस्ट visualize what could be the various combination. So either they can make section A only micro, section B only macro, और section A और B दोनों के अंदर माइक्रो और मैक्रो हो सकते हैं अलग अलग सब पार्ट्स के अंदर. Then the last paper on descriptive, again economic section, but in this paper there is a module of quantitative method in economics, mathematical methods in economics, differentiation, integration, optimization, sets, matrices, linear algebra and linear programming. And the statistical method in economics, measures of central tendency and dispersion, probability, time series, index number. ठीक है, अब डिटेल डिफाइंड है कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर फेज 2. और फेज 2 में वेटेज है, मतलब पहले से वो फेज 1 के लिए था, और अब ये फेज 2 के अंदर भी ये वेल explain है कि this type of question will be asked. So we can say that the weightage of a mathematical section has also been enhanced. Descriptive overall भी बढ़ा, but descriptive के अंदर ये वाला section बढ़ गया. And the third part is econometrics and advanced application, regression analysis, panel data econometrics, time series econometrics, basics of Bayesian econometrics, application of artificial intelligence and machine learning. Now this type of new topic, expect some new question there. And the last section, this paper 2 is a module of the Indian economy. तो Indian economy का section अब यहाँ clear है, policy and trend. And this include fiscal policy in India, evolution, scope, limitation and the current trend. That means you must be familiar with the entire history of the fiscal evolution. How tax collection has changed over a period of time. Before 1991 also and after 1991 also. Although ज़्यादातर उतने पास में क्वेश्चन पूछे नहीं जाने चाहिए, बट सिंस सिलेबस के अंदर गिवन है, देन यू हैव टू प्रिपेयर. मोस्टली you should be at least familiar with the current trend. But fiscal is one important section. Monetary policy is another important. Third part is banking and financial sector development. So financial sector, as you know, capital market, banking वगैरह सब इंक्लूड हो जाएगा, इवन इंश्योरेंस मार्केट. इन्फ्लेशन, तो ये पार्ट अगर आप क्लब करो तो कुछ सम एक्सटेंट वी कैन से सिमिलर, बिकॉज बैंकिंग का एग्जाम है, तो मॉनेटरी मैनेजमेंट, बैंकिंग और इन्फ्लेशन ऑल आर बेसिकली रिलेटेड पार्ट्स. देन एक्सटर्नल सेक्टर डेवलपमेंट, यहाँ पे करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, तारापुरे कमेटी 1, 2, उसके रिकमेंडेशन, चेंजेस, कंपोजिशन, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के क्वेश्चन कई बार आए हुए, तो जो रिसेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होगी उसके सैलेंट फीचर्स क्या है. एंड सेक्टोरल एंड अदर डेवलपमेंट इन इंडिया लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज एंड सोशल सेक्टर रिलेटेड डेवलपमेंट्स. ठीक है, सेक्टोरल डिस्क्रिप्शन. सो इट इज रिटन इंडस्ट्री. नाउ विद इन इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस भी हो सकता है, पब्लिक सेक्टर भी हो गया, प्राइवेटाइजेशन भी आ गया, देन एमएसएमई सेक्टर भी हो गया. तो इस इंडस्ट्री के अंदर भी फर्दर सब टॉपिक हो जाएंगे. वैसे एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, फूड मैनेजमेंट, ग्रीन रेवोल्यूशन, लैंड रिफॉर्म. सो यू शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर दोज. अब ये जो टॉपिक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसमें
बहुत सारे टॉपिक जो अगेन आई रिपीट द सेम थिंग, इकोनॉमिक सर्विस या इकोनॉमिक्स ऑप्शन कर रखा है तो उसमें बहुत सारे टॉपिक आपने ऑलरेडी कर रखा होगा या आप कर रहे होंगे. तो वी विल बी यूजिंग दोज सम ऑफ दोज लेक्चर्स ऑल्सो वी कैन इनकॉर्पोरेट फॉर दिस क्रैश कोर्स. इक्वल वेटेज विल बी गिवन टू द क्वांटिटेटिव एंड द इंडियन इकोनॉमी सेक्शन. मतलब 50 मार्क्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा और 50 मार्क्स का इंडियन इकोनॉमी होगा. तो इंडियन इकोनॉमी का एक्सप्लिसिट वेटेज होगी आपको 50 मार्क्स. 50 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव में और यू कैन एक्सपेक्ट 4-5 क्वेश्चन इन फेज 1. ठीक है. और मैथमेटिकल जो साइड है उसका 50 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव में आ गया और फेज 1 के अंदर उसका वेटेज ज़्यादा होता है. मतलब इकोनॉमेट्रिक्स के या स्टैट्स वाले जो क्वेश्चन मिलेंगे फेज 1 के अंदर उसका वेटेज ज़्यादा होगा. ठीक है. तो दिस वाज ऑल अबाउट कंटेंट ऑफ फेज 1 एंड फेज 2. नाउ सजेस्टेड रीडिंग मटेरियल वी मेंशन्ड है. माइक्रो में कौन कौन से बुक आप एक्सपेक्टेड है. तो वेरियन इज बेसिकली फॉर कंज्यूमर थ्योरी एंड एक्सचेंज वेलफेयर, उस तरीके के टॉपिक के लिए वेरियन है. उसका वर्कबुक भी है. तो वर्कबुक और उसके बैक के जो क्वेश्चन है उसका विथ आंसर विल बी अपलोडिंग बेसिकली द सॉल्यूशन ऑफ दोज क्वेश्चन आल्सो. इट इज नॉट feasible टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन द क्लास, बट चैप्टर के बैक के जो क्वेश्चन है, जो वर्कबुक के क्वेश्चन है विथ आंसर विथ सॉल्यूशन, इनफैक्ट डिटेल सॉल्यूशन विल बी प्रोवाइडिंग दैट. Then Kotsanis is basically covered from the market sector point of view. Perfect competition, monopoly, monopolistic, oligopoly, questions on Chamberlain model, excess capacity, वो आप अच्छे से लिख सकते हो from Kotsanis. And Ferguson and Gold for micro. तो माइक्रो के अंदर 3 रेफरेंसेज हैं. मैक्रो में जो पॉपुलर बुक डॉर्मोश एंड फिशर मेनली फॉर द ISLM. ब्लैंचार्ड इज बेसिकली फॉर इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट सेक्शन. फ्रॉइन ऑल्दो मेंशन नहीं है बट क्लासिकल पर्पस के लिए वी कैन रेफर टू फ्रॉइन. इंटरनेशनल में क्रूगमैन और सल्वाटोर, ये 2 मेन बुक अवेलेबल है. ये दोनों ही यहाँ मेंशन्ड है. क्रूगमैन इज बेसिकली यूज फॉर थियरीज ऑफ ट्रेड मेनली एंड सल्वाटोर यू कैन यूज इट फॉर द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के लिए आप सल्वाटोर यूज करो, थियरीज के लिए क्रूगमैन यूज कीजिए. तो बोथ बुक्स आर बेसिकली सजेस्टेड. एंड पब्लिक फाइनेंस की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है दैट इज मस्ग्रेव एंड मस्ग्रेव. स्टिग्लिट्ज से 2 चैप्टर इनफैक्ट कवर करने हैं, 19 और 20. एक ऑप्टिमल टैक्सेशन का है और एक टैक्स इनएफिशिएंसी का है. तो इट इज नॉट दैट यू हैव टू रीड द कंप्लीट बुक. सेलेक्टेड चैप्टर विल बी गाइडिंग यू विच चैप्टर यू आर एक्सपेक्टेड टू रीड फ्रॉम दिस बुक. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में थर्ड वॉल, बट आई विल सजेस्ट ML Jingan. I think it is better as compared to this in terms of the presentation or in terms of answering the question or coverage of the syllabus. तो ज़्यादा डिटेल में है और काफ़ी वेल एक्सप्लेन है. ऑल्दो अगर आप थर्ड वाला यूज़ करते तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्लोज सब्स्टिट्यूट वी कैन से दैट. देवराज इज फॉर फ्यू चैप्टर्स लाइक लुइस मॉडल, हैरिस-टोडेरो मॉडल, न्यू ग्रोथ मॉडल. दोज फॉर दोज चैप्टर्स और दोज मॉडल्स you can refer Devraj and Kaushik Basu, one extra, but mainly growth and development ML Jingan, Devraj. ऐसे 1-2 टॉपिक और हैं जो मैं स्टडी मटेरियल में ऐड कर देंगे, विच इज लाइक रोमर मॉडल का क्वेश्चन है, एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल के क्वेश्चन है. वो उतने बेटर आपको ना तो थर्ड वाल में मिलेंगे ना ही जिंगन में मिलेंगे. तो आप उसके लिए जोन्स की रीडिंग है चैप्टर नंबर 4 और 5. तो जो भी मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ उसका कंपाइलेशन आपको स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन के अंदर मिल जाएगा. एंड फॉर फेज 2 मैथमेटिकल पेपर्स के लिए और फॉर इकोनॉमेट्रिक्स तो DN गुजराती की बुक पॉपुलर रही, वो आप रेफर कर रहे हैं. स्टैट्स के लिए नागर दास मेंशन्ड है, मिलर एंड मिलर. इंडियन इकोनॉमी उतना डिफाइंड नहीं होता, बट इंडियन इकोनॉमी के लिए सर्वे वी हैव टू कवर, बजट यू हैव टू कवर. उमा कापिला और ऑल्दो इट इज़ नॉट रिटन हियर, बट उमा कापिला EPW आर्टिकल होते हैं बेसिकली. थोड़ा आंसर कॉम्प्रिहेंड करने में स्टूडेंट को डिफिकल्टी होती है. क्लोज सब्स्टिट्यूट इज मिशनपुरी इंडियन इकोनॉमी. यह आंसर फ्रेम करना आपके लिए थोड़ा इजी होगा रिलेटिवली. सो यू कैन यूज मिशापुरी इंस्टेड ऑफ उमा कापिला. और मॉनेटरी पॉलिसी के जितने भी रिपोर्ट्स रिसेंट रिपोर्ट्स होंगे वो. तो अब कंटेंट वाइज देखने से लगता है कि ये काफ़ी वॉल्यूमिनस है, काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रिपरेशन की ज़रूरत है. ऑल्दो ये अगर चेंज करना था तो
थोड़ा पहले अगर अनाउंस या नोटिफिकेशन आया होता तो स्टूडेंट के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता, बट स्टिल कंस्ट्रेंट सबके लिए कॉमन रहता है। स्टिल यू हैव इनफ टाइम। आपको 9th ऑफ मई टुडे, फेज़ 1 में अभी आपके पास 65 डेज है, और फेज़ 1 कंप्लीट करने के बाद फेज़ 2 के लिए आपके अनदर 45 डेज है। तो नेक्स्ट उस 45 डेज के अंदर भी फेज़ 2 के बहुत सारे पार्ट आप कवर कर लोगे। बट फेज़ 1 आपको मैक्सिमाइज करना है, बिकॉज कट ऑफ जो फेज़ 1 का स्कोर है वो फाइनल में काउंट हो रहा है। So you don't have to just qualify. Just if you are meeting only the cutoff, you may qualify for phase 2, but you may not get selected finally. तो जो भी कट ऑफ आता है उस कट ऑफ से अराउंड 15-20 मार्क्स आपको अहेड रहना है इन फेज 1। तो आई थिंक आई हैव स्टेटेड ऑल। कुछ चेंजेस जो एज लिमिट का है या एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, यू कैन गो थ्रू द डिटेल ऑफ दैट। आई एम जस्ट लिमिटिंग माई सेल्फ टू द कंटेंट पार्ट। स्कीम ऑफ एग्जाम जो चेंज हुआ वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हमारी जो क्लासेस वैसे चल रही है रेगुलर, जो पहले से चल रही थी या जो क्रैश को साथ बिगिन हुआ है, उसमें कोई चेंज नहीं होना है। ऑब्जेक्टिव पैटर्न की क्लास अभी तक बेसिकली चल रही थी, उसके पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। सो विल कंटिन्यू विद दैट। हाँ, हमें इंग्लिश वाली क्लास को पहले लेनी है और डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट को थोड़ा और इलेबोरेट करना है, बट वो एनी हाउ फेज 2 के लिए। ठीक है, तो हमारी जैसे क्लास रेगुलर चल रही थी वैसे उसी फॉर्मेट में चलेगी। तो नाउ द क्रैश कोर्स विल बी बेसिकली इनकॉर्पोरेटिंग द स्कीम ऑफ दिस, जो रिवाइज स्कीम है उसके अकॉर्डिंगली क्लास होती है। जितने भी लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो सारे न्यू स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंगली होंगे। जहाँ जहाँ कंटेंट का रिक्वायरमेंट है, जहाँ डिटेल है, कुछ न्यू टॉपिक है, उसके रिलेटेड कोई कंटेंट होगा। अगर हमें टेस्ट नंबर ऑफ टेस्ट को इंक्रीज करने पड़ सकता है, बिकॉज अर्लियर वी हैव शेड्यूल्ड 10 टेस्ट फॉर 5 फॉर फेज 1, 5 फॉर फेज 2, बट सिंस नाउ देर आर 2 पेपर डिस्क्रिप्टिव जो फेज 2 के लिए, so we'll be revising the test series also, and we are adding more and more tests for phase 2 and also for English paper। ठीक है, उसके लिए भी आपको इंक्रीज करना हो। तो विल बी रिवाइजिंग एंड अपडेटिंग यू विद द न्यू टेस्ट सीरीज शेड्यूल। ठीक है, उसमें नंबर ऑफ टेस्ट सर्टेनली बढ़ जाएंगे, बट अपडेट विल बी कमिंग टू यू सून। सो आई थिंक आई हैव एडजस्ट ऑल योर क्वेरी रिलेटेड टू दिस न्यू रिवाइज स्कीम। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी related to that, you can call me directly on this number. Clear? So thanks for watching. Thank you.